اسرائیل کے اپنے کالے کرتوت دنیا سے چھپانے کی کوشش، غزہ میں بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز کے دفاتر پر میزائل داغ دیے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے الجلا ٹاورز کو 4 میزائل داغ کر زمیں بوس کر دیا۔ عمارت میں الجزیرہ سمیت کئی میڈیا ہاؤسز کے دفاتر تھے۔ اسرائیلی فوج نے جنگی جرائم سے پہلے عمارت خالی کرنے کے لیے 10 منٹ کی وارننگ دی۔ دنیا سے سچ چھپانے کے لیے میڈیا ہاؤسز کو اپنا سامان نکالنے کی مہلت بھی نہیں دی۔ غزہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل بن گیا۔ اسرائیلی فورسز کا محاصرہ، باہر سے عالمی میڈیا کو غزہ میں داخلے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم سے انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ صہیونی طیاروں کی وحشیانہ بمباری جاری، خواتین اور بچوں سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 144 ہو گئی، 900 سے زائد زخمی۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ہزاروں خاندان بے گھر، بے بس فلسطینی ملبے سے سامان چننے میں مصروف۔ زخمی فلسطینیوں کے علاج کے لیے مصر میں 3 ہسپتال مختص۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کشیدگی فوری ختم کرنے پر زور۔ سلامتی کونسل اور OIC کے اہم اجلاس کل ہوں گے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا سراپا احتجاج، لندن سمیت برطانیہ کے کئی شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اسپین، جرمنی، آسٹریلیا، اردن اور تیونس میں بھی مظاہرین کے اسرائیل کے خلاف نعرے۔ پیرس میں پولیس نے مظاہرین پر پانی کی توپ چلا دی۔ برطانوی اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن کا غزہ کا محاصرہ ختم ہونے تک اسرائیل کے خلاف احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کی حمایت کرنے پر سینیٹر برنی سینڈرز امریکہ پر برہم، کہا اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت فلسطینیوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ بحیرہ عرب میں موجود سمندری طوفان تاؤتے نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ بھارتی ریاست کیرلا کے ساحلی علاقے میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت گر گئے، زندگی کا نظام معطل۔ سمندر کی بکھری لہریں قریبی آبادیوں میں داخل۔ طوفان 17 مئی کو بھارت کے مغربی ساحل سے ٹکرائے گا، بڑی تباہی کا خطرہ۔ سمندری طوفان تاؤتے کا خطرہ، حفاظتی اقدامات تیز۔ کھلے سمندر میں موجود لانچوں کی واپسی کے لیے فشرمینز کوآپریٹو کے اعلانات۔ جیٹیوں پر موجود ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی بھی ہدایت۔ تھر، میرپور خاص، عمرکوٹ، سانگھڑ اور بدین میں تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش کا امکان۔ 17 سے 20 مئی کے دوران کراچی میں بھی موسلا دھار برسات متوقع۔ سندھ حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کنٹرول روم قائم کرنے اور ایمرجنسی پلان ٹیم بنانے کا بھی حکم۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو تمام بل بورڈز ہٹانے کی ہدایت۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی 16 سے 21 مئی تک تمام تعمیراتی کام بند رکھنے کی ہدایت۔ محکمہ ریلوے نے کراچی، کوٹری اور حیدرآباد میں کنٹرول روم قائم کر دیے۔ NCOC کا انٹر سٹی اور انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کل سے بحال کرنے کا فیصلہ۔ 50% مسافروں کی پابندی برقرار رہے گی۔ 17 مئی سے تمام دکانیں، مارکیٹس رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی۔ ریسٹورانٹس پر انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی برقرار، صرف ٹیک اوے کی اجازت۔ دفاتر 17 مئی سے معمول کے اوقات کار پر کھولے جا سکیں گے۔ 50% تک ملازمین کی حاضری پر پابندی برقرار رہے گی۔ 70% مسافروں کی گنجائش کے ساتھ ٹرین سروس جاری رہے گی۔ اجلاس میں عید کے دوران SOPs عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار۔ لاک ڈاؤن اور SOPs پر سختی سے عمل درآمد سے کرونا کیسز میں نمایاں کمی۔ 24 گھنٹے میں 1531 نئے کیسز رپورٹ۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 5% رہی، 83 اموات ہوئیں۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن 16 مئی سے بڑھا کر 24 مئی تک کرنے پر غور۔ فیصلہ NCOC کے اجلاس میں ہوگا۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ویکسینیشن کا دوبارہ آغاز۔ پنجاب حکومت کا ایکسپو سینٹر لاہور میں 24 گھنٹے ویکسینیشن جاری رکھنے کا فیصلہ۔ چین سے کرونا کی سنگل ڈوز ویکسین کی نئی کھیپ کل پاکستان پہنچے گی۔ شہباز شریف کا نام تاحال ECL میں نہیں ڈالا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں وفاقی کابینہ سے سمری تاحال وزارت داخلہ کو موصول نہیں ہوئی۔
पीर मंगल तक समरी मिलने की तवक्को है। समरी पर वजारत कानून और वजारत दाखिला आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। बोले, शहबाज शरीफ के खानदान के 5 मुल्जिम मफरूर हैं। शहबाज शरीफ खुद नवाज शरीफ के गारंटर हैं। शेख रशीद झूठ बोल रहा है। अदालत के हुक्म के बावजूद ईद वाले दिन दफ्तर खुलवा कर गैर कानूनी समरी सर्कुलेट की गई। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोले, काठा अंग्रेज रोजाना ICL में शहबाज शरीफ का नाम शामिल करने से मुताल्लिक सफेद झूठ बोलता है। शीदे और उसके बॉस की तिल्ली खड़क चुकी है। कौम जल्द तमाशा देखेगी। रावलपिंडी रिंग रोड में बेज़ाब्तगियों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट मुकम्मल। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली जिम्मेदार करार। वज़ीर आला पंजाब का जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। रिपोर्ट में मोहम्मद महमूद और वसीम अली का केस नैब को भिजवाने की सिफारिश। दोनों अफसरान ने गैर कानूनी लैंड एक्विजिशन पर 3 अरब 20 करोड़ रुपए तकसीम किए। तौकीर शाह और नेस्पाक के चंद अफसरान भी जिम्मेदार करार। तौकीर शाह के करीबी रिश्तेदार इस वक्त अहम हुकूमती ओहदे पर हैं, वो भी मुलव्विस करार। मेंबर PND फर्रुख नवीद को ओहदे से हटाकर तहकीकात का फैसला। 12 हाउसिंग सोसाइटी से भी FIA और FBR इंक्वायरी करेंगे। रिंग रोड स्कैंडल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी और नाम ECL में डालने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये बेज़ाब्तगियां नहीं, 25 अरब का डाका है जो शहबाज शरीफ का मंसूबा रीअलाइन करके डाला गया। इमरान खान एक तरफ शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल कराते हैं तो दूसरी तरफ उनके मंसूबे तब्दील करके रेंट सीकर्स को फायदा देते हैं। नुमाइशी मंसूबों से कमीशन किकबैक्स का दौर गुजर चुका। जाली खादिम आला की TT से बैंक बैलेंस बढ़ाने की असलियत बेनकाब हो चुकी। हुकूमत बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस हर फर्द को कानून के कटहरे लाएगी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, जाली राजकुमारी की कनीजें नौकरी पक्की करने में लगी हुई हैं। जिले सुबहानी को खुश करने के लिए झूठ के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी तफरी गाहें बंद। लोग ईद की खुशियां घरों पर ही मना रहे हैं। बच्चों के ननियाल और धदियाल के दौरे, चटपटे रिवायती पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। केक और मिठाइयाँ भी दस्तरखानों की शान बढ़ाती रहीं। इस्लामाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद पाबंदी के बावजूद तफरीही मकामात पर पहुँच गई। SOPs की खुली खिलाफ वर्जी, मास्क का इस्तेमाल भी याद न रहा। रिश्वत लेकर पायलट्स को पास करने वाला असिस्टेंट कराची में जायदादों का मालिक निकला। सिविल एविएशन अथॉरिटी की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में FIA की तहकीकाती रिपोर्ट भी शामिल। सैयद अदील आफ्ताब ने रिश्वत के पैसों से गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची में जायदादें बनाई। रिपोर्ट में अदील आफ्ताब के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। अदील आफ्ताब के अकाउंट में रकम फ्रंटमैन जमील अहमद ने मुंतकिल की। अदील आफ्ताब सिविल एविएशन अथॉरिटी में ग्रेड 2 के असिस्टेंट हैं। कराची में रेंजर्स का एक्शन, लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब मुल्जिम आकिब उर्फ मुल्ला गिरफ्तार। मुल्जिम ने ATM से रकम निकलवाने वाले 4 अफराद को कत्ल किया था। डकैती की 450 और मोबाइल छीनने की 200 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस। क्राइम रेट है, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिन दिहाड़े डकैतियाँ पड़ रही हैं। खाली इस महीने के अंदर जो है 88 लोग जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया है। कराची में क्राइम रेट अपनी हदों को अबूर कर चुका। नाअहल वजीर आला सिंध नाकाम हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं, IG सामने नहीं आते। DIG से कितनी मुलाकातें की, दफ्तर कब जाते हैं, कुछ नहीं पता। सिंध के साथ ये डाकाज़नी है पानी की, वो बंद की जाए। सिंध जो है वो इस नाअहल हुकूमत के कोशिशों से बंजर होने की तरफ जा रहा है। सिंध को बंजर होने नहीं देंगे। सिंध बंजर हो रहा है। मरकज सिंध के अवाम को पानी के लिए तरसा रहा है। सिंध का पानी चोरी ना किया जाए, डाकाज़नी बंद की जाए। हक तलफी हुई तो सिंध पंजाब के बॉर्डर पर धरना दूंगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अनवर सयाल ने खबरदार कर दिया।
नासिर शाह ने कहा, हुकूमत की नाअहली से मईशत का बुरा हाल हो गया और अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को तबाह करने जा रहे हैं। ₹20,000 के एवज पुरानी कब्रों में मैयतों की तदफीन करने वाला गोरकन इस्माइल गोड कब्रिस्तान से गिरफ्तार, 3 साथी फरार। कराची के शहरी ने वालिद की कब्र की जगह नई कब्र बनाने की शिकायत की थी। कंदकोट में कच्चे के इलाके में डाकुओं का हमला, फायरिंग से चाचड़ कबाइल के 5 अफराद कत्ल, 6 से जायद शदीद जख्मी, मजीद हलाकतों का खदशा। खानकाह डोगरा वैन हादसे में जाम बहक 11 अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन, 7 बच्चों और 3 खवातीन की लाशें एक साथ उठने पर किला दीदार सिंह की फिजा सोगवार। तमाम अफराद वैन नहर में गिरने के बायस जाम बहक हुए, सबका ताल्लुक एक ही खानदान से था। भारत में कोरोना के वार, 24 घंटे में मजीद 3,886 अफराद हलाक। 20 रोज के दौरान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 18 प्रोफेसर्स भी लुकमैजल बन गए। जामिया की फजा सोमवार 3.5 लाख नए केसेस रिपोर्ट। 6 माह के दौरान भारत में कोरोना केसेस की तादाद 1 करोड़ से बढ़ गई। ARY न्यूज की खबर पर एक्शन, जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। गिलगित बल्तिस्तान जिला दयामिर के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। सयाहों को रोकने के लिए टूरिस्ट पुलिस और लेवी फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट तैनात। तंज़ो मिज़ाह का एक और बाब बंद, अंकल सरगम के किरदार से शोहरत पाने वाले फारूक कैसर खालिक हकीकी से जा मिले। इस्लामाबाद में तदफीन, नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब, सहाफ़ी, अदाकार और फनकारों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पुतली तमाशा, कलियाँ, फारूक कैसर की पहचान बना। फारूक कैसर माशरती मसाइल पर मज़ाहिया अंदाज में बात करने में महारत रखते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL 6 के बाकी मैचेस करवाने के लिए भाग दौड़ में मसरूफ। सीजन 6 के बाकी मैचेस अबू धाबी में होने का इम्कान। PCB के COO सलमान नसीर की क़यादत में 6 रुकनी वफ्द अबू धाबी में मौजूद। कल इंतजामिया से मुलाकात करके मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। जून के पहले हफ्ते में मैचेस का आगाज होगा। जुनून से भर ले आंचल, बीत जाए कहीं ना ये पल। ईद उल फितर पर ARY न्यूज दिखा रहा है रंगारंग प्रोग्राम। होशियारियां को रौनक बख्शी गुलकार अली जफर ने सुरों का जादू भी जगाया। सवाल ये है में मेहमान बने काशिफ अब्बासी, रऊफ लासरा और फहद हुसैन की दिलचस्प नोकझोंक। याद रफ्ता में नाजी हसन पर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में उनके यादगार गानों ने कानों में फिर से रस खोला। स्पोर्ट्स रूम में वहाब रियाज और कामरान अकमल ने किया नजीबुल हसनैन की गुगलियों का सामना। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.